ویلکم بیک۔ آغاز کرتے چلیں شہر نامے کا اور یہاں خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے گجرات سے، جہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اور اس سلسلے میں شہر میں نذر و نیاز، درود و سلام کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ صدر بازار صراف ایسوسی ایشن کی جانب سے محفل میلاد شریف صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا اور 50 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے گئے۔ تاجر برادری، بازار صرافہ کی اہم سیاسی و سماجی مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ اختتام پر عالم اسلام کی سربلندی کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں اس وقت اپنے پورے عروج پر ہیں، جبکہ مزید اس حوالے سے جان لیتا ہے پاک پتن سے یوسف رضا کی اس رپورٹ میں۔ پیغمبر عظیم نبی آخر الزمان محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کے لیے دنیا بھر کی طرح پاک پتن میں بھی تیاریاں اس وقت اپنے پورے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے بازار، گلی محلوں اور گھروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کے لیے فرزندان اسلام پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، جن میں بچے اور بڑے بھی شامل ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ جھنڈے خریدنے آئے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہماری طرف سے تمام مسلم امہ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک ہو، اور ہم لوگ بہت زیادہ پرجوش ہیں اس دن کو منانے کے لیے۔ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں میں اسٹال پر آئے ہوئے ہیں اور ہم نے بیجز خریدے اور جھنڈے خریدے۔ 12 ربیع الاول کے مقدس اور بابرکت دن اللہ کے آخری نبی تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آسمان سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی جس سے ظلمت کے اندھیرے چھپ گئے اور پورے عالم اسلام میں نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ظلمت کے اندھیرے چھپ گئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رضا، میٹرو 1 نیوز، پاک پتن۔ ضلع انتظامیہ ننکانہ کی جانب سے آفیسرز کلب میں بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں علماء کرام، امن کمیٹی کے ممبران سمیت وکلاء، صحافی، سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ سیرت النبی کانفرنس سے علماء کرام اور مقررین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس امن، محبت، اخوت، بردباری، تحمل، برداشت، درگزر کرنا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ دن صرف منانا ہی نہیں بلکہ درس پر عمل کرنا ہے۔ سیرت النبی کانفرنس کے اختتام پر معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر ڈاکٹر علامہ محب النبی طاہر نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ شکرگڑھ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر شہر کریا نور میں ڈوب گیا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں، بازاروں، چوک چوراہوں، کوچوں، نجی اور سرکاری عمارتوں اور مساجد کو برقی کمکموں سے سجا رہے ہیں۔ محفل اور جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ننھے بچوں کی طرف سے بڑی ریلیاں نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز رانا اشتیاق سے۔ رانا اشتیاق، اپڈیٹ کیجیے۔ آقا نامدار، مدنی تاجدار، ختم نبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سعادت کا دن بہت ہی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت عاشقان رسول شکرگڑھ میں میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، جہاں عالم اسلام میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ یوم ولادت بہت عقیدت اور جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. وہاں ہی شکر گڑھ کی عوام، شکر گڑھ کے یہ کنز الایمان بیکن اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے اساتذہ اور ساتھ میں سارے ساتھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی ہیں جو ساری عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. اس نبی کے حسن اخلاق پہ ہم عمل کریں تو الحمدللہ ہم اپنے اچھے شہری، اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. تو آج کے دن کے لیے یہ سارے عوام، یہ پاکستان صرف یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن اور اپنے اسلام سے پیار کرنا چاہیے. یہی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ہے. جی بالکل، آپ نے عاشقان رسول کی بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن جو بہت ہی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں. شکر گڑھ کی بات کی جو شکر گڑھ میں کریا کریا نور سے ڈوب چکا ہے. جی ایس ایس پی گھوٹ کی حفیظ الرحمان بگٹی کی ہدایت پر گھوٹ کی پولیس نے 12 ربیع الاول ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت کنٹیجنسی پلان ترتیب دے دیا ہے. گھوٹ کی ضلع بھر سے 18 سے زائد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی. 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایس ایس پی گھوٹ کی حفیظ الرحمان بگٹی کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے نکلنے والے تمام جلوسوں ریلیوں کی فل پروف سیکورٹی سر انجام دینے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. کسی بھی قسم کی غیر ضروری مشکوک نقل و حرکت دیکھنے پر عوام متعلقہ تھانے پر یا پھر سیکورٹی کنٹرول روم کے نمبر پر فوری اطلاع دیں. ایس ایس پی گھوٹ کی حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر سے 18 جلوس اور ریلیاں جشن عید میلاد النبی کی نسبت سے برآمد ہوں گی، جن میں مرکزی جلوس گھوٹ کی خانپور مہر، میرپور ماتھیلو، ڈیر کی اباڑوں سے، جبکہ 13 ریلیاں مضافاتی علاقوں سے نکلیں گی، جن کی فل پروف سیکورٹی کے لیے 1840 پولیس افسران، جن میں 5 ڈی ایس پی، 20 ایچ اوز، 240 افسران سمیت پولیس اہلکار شامل ہیں. جلوس گاؤں کی تمام راستوں پر سی سی ٹی ویز اور ویڈیوز سے بھی نظر رکھی جائے گی. اس کے علاوہ خواتین کی محفل میلاد کے لیے لیڈیز پولیس فورس کے ساتھ رضاکار بھی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں گی، جبکہ سندھ رینجر کے افسران و اہلکار بھی پولیس کی معاونت کے لیے موجود ہوں گے. گھوٹ کی ہمیشہ سے تمام مذہبی تقاریب اور رسومات کے حوالے سے امن کا گوارا رہا ہے. انشاءاللہ اس بار بھی یہ مرحلہ پرسکون اور امن سے اپنے پمائے تکمیل تک پہنچے گا. کیمرامین ٹیم کے ہمراہ رانا اقبال، میٹرو ون نیوز، گھوٹ کی. گجر خان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. شہری بازاروں کو سجا رہے، مساجد پر بھی برقی کمکمے لگا دیے گئے. مزید دیکھتے ہیں عزت اللہ خان کی یہ رپورٹ. گجر خان میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. چھوٹے بڑے اہم شاہراہوں کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے. سرکاری اور نیم سرکاری عمارات پر برقی کمکمیں لگ گئیں. اس دن کی مناسبت سے خصوصی سٹالز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر مختلف اقسام کی اشیاء کی فروخت عروج پر ہے، جبکہ بازاروں کو مختلف جھنڈیوں سے سجانے کا سلسلہ جاری ہے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے خانہ کعبہ کا تیار کردہ ماڈل بھی رکھا گیا ہے، جس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. کیمرامین کے ساتھ عزت اللہ خان، میٹرو ون نیوز، تحصیل گجر خان. ملک بھر کی طرح حاصل پور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں. تحصیل حاصل پور میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر محمد احمد خان کی زیر نگرانی تمام سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ عمارتوں اور مین شاہراہوں کو مختلف رنگوں کے برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس کے راستوں پر صفائی کے مکمل انتظامات کر لیے گئے. مساجد میں محفل میلاد کی تیاریوں کو بھی حتمی شکل دے دی گئی. پاکستان سنی تحریک ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام میلاد ریلی نکالی گئی. ریلی میں موجود ہمارے بیورو چیف رمضان ندیم مزید آگاہ کر رہے ہیں. ملک بھر کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام میلاد ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. دربار قادریہ ڈیرہ غازی خان سے ریلی کا آغاز ہو چکا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریلی کے شرکا، ان سے جانیں گے سر اس موقع پر جواد الحسن صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس موقع پر کیا نہیں کہیں گے، الحمدللہ سرکار کی آمد مرحبا. عید کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے.
हर मुसलमान खुश है। और इस दिन की मुनासबत से हम सारी दुनिया को पैगाम देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल थे, और इंशाअल्लाह हम उनकी नामूस पे इंशाअल्लाह पहरा देते रहेंगे। आप क्या कहेंगे साहब? जी बिल्कुल, आज का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन है। सरकार की विलादत का जश्न पूरी दुनिया के मुसलमान जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। आज डीजी खान के आशिकान रसूल इस रैली की सूरत में अपना मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह निकले हैं, और इसी तरह इंशाअल्लाह सरकार का मिलाद मनाते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए खुशियों का और हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत प्यारा और रहमतुल आलमीन की विलादत का दिन है, और हम जोश व खरोश से मनाएंगे जी। मैं तो कहूँगा सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा। खाने रसूल का जम्मे गफीर अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इनका कहना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जारी रहेगा और ये जश्न मनाते रहेंगे। और ये रैली का जो आगाज़ है दरबार कादरा से हुआ है, जो पूरे शहर का राउंड दिखाएंगे। इस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो चीफ ऑफिसर हैं जनाब जवादुल हसन गोंदल साहब, वो भी रैली में शरीक हैं और मुकम्मल सिक्योरिटी दी जा रही है। जी हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सिलसिला जारी है। तकबीर वेलफेयर सोसाइटी नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ ज़िला गुजरात के ज़ेर एहतमाम राना मोहम्मद नज़ीर की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर 400 तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम की तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। तकरीब में केक काटा जाएगा। तलबा और तालिबात कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने वाले बच्चों और बच्चियों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। तकरीबात की शानदार तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैलियाँ और महफिल सजाई जा रही हैं। आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न शायान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। ऐसे ही एक महफिल का अहवाल बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान खान। खुशियाँ मनाओ, डूबे बजाओ। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न हर सू मनाया जाता है। दुनिया भर समेत पाकिस्तान और खुसूसन हैदराबाद में भी आका की आमद का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। महफिल नात का प्रोग्राम हुआ है हमारे लतीफ़ाबाद नंबर 2 में, और आका का मिलाद है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आका के जो गुलाम हैं वो पूरे जोशो खरोश से दिलो जान से मनाने की कोशिश करते हैं। हम शहर भर में रैलियों और महफिलों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 कादरिया मस्जिद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल का इनेकाद किया गया। हम हर साल इसी जोश व खरोश के साथ ये मिलाद मनाते हैं, और क्यों ना मनाए, ये हमारे सरकार का मिलाद है। उस सरकार को जिसने पूरी दुनिया कायनात को दी है, उसके लिए हम जान और निसार अपनी कुर्बान करते हैं। माशाल्लाह का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह। ऐसे महफिल होना चाहिए। महफिल में नामवर सना खां और जय्यद उलमा कराम के अलावा इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और हुजूर की आमद का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज़ हैदराबाद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने के लिए हैदराबाद में भी तैयारियां जारी हैं। मसाजिद इमारतों पर चरागा किया जा रहा है। शहर बकाए नूर बन गया है। गली गली मिलाद की महफिलें सजाई जा रही हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। गली गली सज गई, अपने बच्चों की तैयारियां कर रहे हैं, अपना मोहल्ला सजाया है, अपने घर को सजाया है। शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार मदीना, ताजदार दो जहां, सरदार अंबिया, आखिरी नबी हुजूर नूर मुजस्सम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने के लिए हैदराबाद में भी तैयारियां जारी हैं। बच्चे
बच्चे बड़े सभी झंडे, बैजेस और सजावट का दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। सुबह इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी का महीना चल रहा है 12 रबीउल अव्वल। हमारे इलाके दिल्ली फरीदाबाद के अंदर ये जो मेन रोड है, शान तरीके से पूरा ये काफ़ी दूर तक जो है ना लाइटें लगाई जाती है। हमने लाइटें लगाई हैं, झंडे लगाए और दुरूद शरीफ उन पे पढ़ा है और सलाम पढ़ा है। यकीनी तौर पे ये दिन जो है वो हमारे लिए बहुत खास दिन होता है, तो हम लोग इस तैयारी इस तरह करते हैं कि घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, खुद तैयारियां करते हैं कि जुलूसों में जाना है और फिर जो है वो दीगर चीज़ें तकसीम भी हो रही होती हैं। तो बड़ा एक अच्छा और बड़ा खास दिन है, तैयारी बहुत खास होती है। यौम विलादत को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए शहर की मसाजिद और इमारतों को भी बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और महफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी है। जबकि सिक्योरिटी के लिए भी SSP हैदराबाद ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया। फैज़ान मदीना को भी और फैज़ान मदीना के जो आसपास की बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह उनको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और ये क्यों ना सजे, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद का जश्न है। बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, इसके लिए हमने अपनी पूरी ज़िले की जो नफरी है ड्यूटी उस पर मामूर होगी। इसके अलावा हमें IG साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए हमें कुछ एक्स्ट्रा नफरी दी है जो अपने ज़िले की नफरी के अलावा हम वो भी तैनात करेंगे। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि दो जहानों के सरदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न है, हर साल की तरह इस साल भी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, Metro 1 न्यूज़, हैदराबाद। जलाजीम में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मारूफ़ आलिम दीन मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान सानी और दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। जलाजीम मेलसी में सालाना तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद हुआ। जामे मस्जिद अक्सा में ज़ेर सरपरस्ती मौलाना हुसैन अहमद तारिक, जिसमें लाहौर से मारूफ़ आलिम दीन वकील तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान सानी और कराची से मारूफ़ नातख़्वा हाफ़िज़ मुनीर अहमद ने ख़ुसूसी शिरकत किया और उनके अलावा दीगर उलमाए कराम ने भी शिरकत की। अज़ीज़ुर्रहमान सानी साहब के रूह परवर बयान और हाफ़िज़ मुनीर की हमदोनात ने महफ़िल को खूब रौनक बख्शी। उलमाए कराम ने खिताब में क़ादियानियत के ख़िलाफ़ जिहाद का अज़्म किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फ़ैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम ज़िले इंतज़ामिया की गफलत की नज़र हो गया। मोहल्ला तौहीदाबाद के रिहायशी सीवरेज के गंदे पानी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि जगह जगह बने गंदे जोबर डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बने रहे। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे कैसर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब की जानिब से साफ़ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। हम इस वक्त चिन्योट के महल्ला तौहीदाबाद में मौजूद हूँ। बात की जाए सीवरेज के हवाले से तो यहाँ सीवरेज का जो काम है वो नहीं करवाया गया। आए शहरियों को आए दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गलियाँ महल्ला है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि आप किन मसाइल का शिकार है, क्या मसला है आपके हवाले से। जी हमारे पास पानी का बहुत मसला है, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। आए दिन पानी खड़ा रहता है, जब बारिश आती तो बारिश का पानी घरों में चला जाता है जो कि पीने के काबिल नहीं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और हमारी वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि ये चिन्योट जो है, हम चिन्योट के रहायशी हैं, मेहरबानी करके हमारा सीवरेज सिस्टम बेहतर किया जाए। जितने भी नुमाइंदगान वोट लेने के लिए आते हैं उसके बाद वो हमारा हाल तक नहीं पूछते, तो मेहरबानी करके हमारा कोई हल निकाला जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारी सीवरेज का काम जो है वो फिल फौर करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो बीमारी से भी बच सकें और हम सहूलियात जो मुयसर हो सके। और इन शहरों का यही भी कहना है कि जो सियासी लोग हैं वो इंतखाबात के दौरान हमारे पास आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वादा करने के बावजूद हमारे काम नहीं किए जाते। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये हमारे सीवरेज का काम जो है वो जल्द अज करवाया जाए। मेयर मीरपुर ख़ास अब्दुर्रऊफ़ गौरी ने मरकज़ी ऑफ़िस फैज़ान मदीना, मदरसा कंजुल ईमान, मरकज़ी ऑफ़िस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, मदीना मस्जिद, खट प्लाट में उलमाए कराम से मुलाकात की और मुख्तलिफ़ इलाकों का भी दौरा किया। मीरपुर ख़ास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर अब्दुर्रऊफ़ ने दौरे के मौके पर मुंतज़मीन 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की गुज़रगाहों पर सफाई सुथराई दीगर मामलात पर बातचीत की, जिस पर अब्दुर्रऊफ़ गौरी ने यकीन दिलाया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से
हर किस्म का ताउन किया जाएगा। जुलूसों की गुज़रगाहों को बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जाएगा। मेयर अब्दुर्रऊफ़ गौरी ने उलमा कराम के साथ 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की गुज़रगाहों का भी दौरा किया। जुलूस की गुज़रगाहों पर सफाई सुथराई और दीगर मामलात का जायज़ा लिया। जमात इस्लामी के तहत ईद मिलादुन्नबी जामिया मस्जिद इब्राहिम खानेवाल में स्टेशन रोड से एक रैली निकाली गई जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची। मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जमात इस्लामी की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक रैली स्टेशन रोड से निकाली गई जिसकी क़यादत पीर मुस्लिम जान लाल मोहम्मद सोलंकी और इकराम बेग कर रहे थे। जामिया मस्जिद इब्राहिम खानेवाल में उलमा अहले सुन्नत और उलमा मुशाइख की जानिब से मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि कल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मजहबी जोश व खरोश से और शान शान तरीके से मनाएंगे और जमात अहले सुन्नत के कारकुनान भरपूर शिरकत करेंगे। इजलास में जमात अहले सुन्नत और खानेवाल से मुशाइख अहले सुन्नत ने इस अज़म का अदा किया कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाते और मनाते रहेंगे। इजलास में नात खान हज़रात ने हजूर की विलादत की शान में गुलाह अक़ीदत के फूल निशावर किए। आज मदरसा इब्राहिम तलीमुल कुरान में तमाम तंजीमात अहले सुन्नत, उलमा व मुशाइख अहले सुन्नत का मुश्तरका इजलास हुआ है जिसमें तमाम तंजीमात के अकाबरीन नुमाइंदगान ओहदेदारान ने शिरकत की है। आज जो इजलास हुआ उलमा अहले सुन्नत की क़यादत में भरपूर तरीके से आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ रबीउन नूर शरीफ का दिन मनाने की अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक बात की है और इंशाअल्लाह और करीम पहले से ज़्यादा मिलकर हम सब जोश व खरोश के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन मनाएंगे। मरकज़ हकीमाबाद में मुफ्ती आबिद रिजवी साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमात अहले सुन्नत का इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें बाहमी मशावरत से ये कल अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलाद शरीफ का जलसा और जुलूस है उसके बारे में हतमी जो है मामलात को अमली शक्ल दी गई है। इजलास के अख्ताम पर पीर सैयद सफदर हुसैन बरारी ने मुल्क व मिल्लत की सलामती और हाज़रीन महफिल के जायज़ मकासद के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ़ार, मेट्रो वन न्यूज़ खानेवाल। पतोकी में 12 रबीउल अव्वल को मनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों, गलियों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ़ है। गली गली महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार आ गई है। हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक पतोकी से इस पर खुसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक ही दिन बाकी है। मुल्क भर की तरह पतोकी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार आ गई है। सब्ज़ झंडियों और बैजेज़ और रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से मसाजिद और गलियां बाजार भी सज गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह मंडियावाला तहसील पतोकी में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर गलियां बाज़ार पूरे जोशो खरोशों से सजाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी भरपूर तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी मंडियावाला में मनाया जाएगा। और जब भी ईद मिलादुन नबी का शुरू होता है तो हम गलियां सजाना शुरू कर देते हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में ये हम गलियां बाजार सजाते हैं। मुख्तलिफ चौक चौराहों में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया है, जबकि हर सौ दरूद व सलाम की सदाएं भी बुलंद हो रही है। महफिल पाक का एहतमाम किया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर बार की मसाजिद, इमारतों और शहराओं को भी सब्ज़ परचमों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है, जबकि कई बाज़ारों और शहरों पर मेहराबे और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से इजहार अकीदत कर रहे हैं। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो वन न्यूज़ पतोकी।
पाकपतन में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के माह को शायान शान तरीके से मनाने के लिए सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर 3 रोज़ा तकरीरी मुकाबला मुनक़्क़िद करवाए गए, जिसमें 300 से ज़ायद स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। आतिफ ज़री खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकपतन में ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी। सीरत फाउंडेशन की जानब से तलबा में तकरीरी मुकाबला जात करवाए गए। इन मुकाबलों में प्राइवेट स्कूल्स के 300 से ज़ायद तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर बच्चों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की तरवीज का जो है वो किरदार अदा करेंगे। वहीं पर बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो उनको उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। जहाँ बच्चों के माबैन ख़त्म नबूवत जैसे खूबसूरत उन्वान पे तकरीरी मुकाबला जात हो रहे हैं। मैं इस पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये अकीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें आने वाली नस्लों को ख़त्म नबूवत से आगाही के लिए स्कूल्स के इन प्रोग्रामों को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और ख़त्म नबूवत हर दिल तक, हर मुसलमान तक, हर फर्द तक पहुँचाना चाहिए। 3 रोज़ा तकरीरी मुकाबला जात के इख्तिताम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर उम्दा तकारीर करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां पुरजोश तरीके से जारी हैं। लोगों ने झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे अमानत सोहल से। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मनाने की पुरजोश तरीके के साथ तैयारियां जारी हैं। लोगों ने अपने मोहल्लों, गलियों और मसाजिद को सजाने के लिए और ख़रीदारी के लिए यहाँ पे शेखपुरा के मुख्तलिफ स्टॉल का रुख कर चुके हैं। आइए मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है वो किस तरह मनाएंगे। जनीब भाई जी बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत पाक है उसका जश्न हम खूब मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। और मैं अपने बच्चों के लिए ये नालैन पाक और बैजेस हैं, स्टिकर्स हैं और दूसरा रैशी सामान है जिसके लिए वो मुझे कह रहे थे कि हमने घर को सजाना है, तो वो यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तो जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनकी विलादत पर जश्न का इजहार कर रहे हैं, तो शेखपुरा के अवाम भी किसी से कम नहीं है। हम भी इंशाअल्लाह ताला खूब मजहबी जोश जज्बे के साथ पूरी मोहब्बत और इश्क के साथ जो है नबी की विलादत का जश्न मनाएंगे। जी, इनका कहना था कि हम भी जो हमारे आका की विलादत का दिन है वो बड़ी खुशी से मनाएंगे। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ बैजेज़ और झंडे झंडियाँ भी ख़रीदी हैं जिससे हम अपने घरों और मोहल्लों और मस्जिद को भी सजाएँगे। और उसके बाद हमने महफ़िल का भी इनकाद किया है जिसमें पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ का नजराना भी पेश किया जाएगा। जी जहलुम में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां बामे उरूज पर हैं। शहर शहर करिया करिया नूर में डूब गया। आशिकान रसूल गलियों, बाज़ारों, चौराहों, कूचों और निजी सरकारी इमारतों, मसाजिद को बरकी कुमकुमों और झंडियों से सजा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं जहलुम से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो वन न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी से। नबी व हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का दिन मनाने के लिए जहलुम के शहरी बिल्कुल जोश है। गलियां, बाजार, मसाजिद और घरों को सजाया जा रहा है। दुरूद पाक के महफूज का नज़र न्याज का एहतमाम भी किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए हैं जहाँ पर नालैन पाक, झंडे, झंडियाँ और दीगर मिलादुन्नबी के हवाला से खरीदारी अरूज पर पहुँच चुकी है। इस हवाला से शहरियों का कहना है कि मिलादुन्नबी का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही हम तैयारियों में लग जाते हैं। तमाम ईदों के अंदर ईद मिलादुन्नबी है क्योंकि इस माह मुक़द्दस में दोनों जहान के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। घरों और मसाजिद में ज़िक्र और अज़कार के साथ साथ दुरूद पाक की महफ़िल का एहतमाम भी किया जा रहा है। बच्चे बड़े ईद मिलादुन्नबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं गुजरांवाला में जायदाद के तनाज़े पर 2 भाइयों समेत 4 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या थाना कैंट के इलाके इकबाल टाउन में पेश आया, जहाँ मुसल्लह मुल्ज़िमान ने घर में सोए हुए 4 अफराद को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान और मक़तूलीन के दरमियान अरसा दराज से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मक़तूलीन में 2 सगे भाई 2 कज़न्स शामिल हैं। मुल्ज़िमान में मक़तूलीन का सगा भाई और भतीजा शामिल हैं। मुल्ज़िमान मौके से हवाई फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। RPO गुजरांवाला तैयब हफीज़ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CPO अयाज सलीम से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का THQ अस्पताल का अचानक दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान THQ का दूसरा दौरा है। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला ज़हीरुद्दीन बाबर, मेंबर हेल्थ कमेटी मियां ताहिर रफ़ीक, SM THQ मोहम्मद अली ख्वाजा समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, रिवैम्पिंग के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए नए बनने वाले वार्ड्स को जल्द फ़ाल करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीज़ों की आयादत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के साथ मेडिसिन की क़िल्लत का भी सामना है, जिसको जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश की जा रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मरीज़ों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फ़राहम करें। किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील जहानिया में किसान कार्ड्स का इजरा रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाजी अत्ताउर रहमान, महर इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हाफिज़ शाहिद जावेद, हाजी मोहम्मद सलीम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ज़मींदारों में किसान कार्ड तकसीम करके इफ्तिताह कर दिया। महकमे ज़राअत की जानिब से तहसील जहानिया में किसान कार्ड के इजरा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। किसान कार्ड मरकज़ म्यूनसिपल कमेटी जहानिया का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में साबिक़ MP जहानिया हाजी अत्ताउर रहमान, चौधरी मोहम्मद असलम कम्बू समेत दीगर ने खुसूसी शिरकत की। मुतादिद किसानों को कार्ड्स तकसीम के इस मौके पर हाजी अत्ताउर रहमान ने कहा, यह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान का मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत के शोबे की तरक्की ने किसान कार्ड एक इनकलाबी कदम है। किसान पूरी मेहनत और ईमानदारी से किसान कार्ड का इस्तेमाल करे ताकि हुकूमती इक़दामात से मुस्तफ़ीद हो सके। इस मौके पर पंजाब बैंक और महकमा ज़राअत के अफसरान और अमला भी मौजूद था। कसूर थाना मंडी उस्मानवाला के इलाके महालम खुर्द में डाकुओं की मज़ाहमत पर फायरिंग से 40 साला रियासत अली शदीद ज़ख्मी हो गया। आपको बताएं कि SHO थाना मंडी उस्मानवाला डकैती की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर बेबस हो गए। महालम खुर्द में डाकुओं की मज़ाहमत पर फायरिंग से 40 साला रियासत अली शदीद ज़ख्मी हो गया। 5 से 6 मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से रियासत को दाई टांग पर गोली लगी। नाकाज़न डाकू मुतादिद शहरियों को लूटने के बाद मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए। इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। महंगाई और बेरोज़गारी इस दौर में जहां पर मज़दूर आदमी का रोज़ी रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है, वहीं पर मरकज़ी मुस्लिम लीग भावलनगर की जानिब से फ्री दस्तरखान लगाया जा रहा है, जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद फ्री खाना खा रहे हैं। तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद विरक बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के इस पुरफितन दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खिदमत खलक के लिए जज्बा रखते हैं। अरसा 2 साल से यहाँ पर दस्तरखान का जो आगाज़ किया गया है और इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके इस बारे में क्या कहना है। जी सर, आप बताइए।
महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। और कमर्शियल कॉलेज चौक, ये बहावलनगर का वो चौक है रोज़ाना जहाँ पे सैकड़ों मज़दूर खड़े होते हैं और दोपहर का वक्त होता है, कितने मज़दूर अभी भी इसी इंतज़ार में होते हैं कि उन्हें दिहाड़ी मिल जाए, उन्हें मजदूरी मिल जाए। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अल करीम फ्री दस्तरखान के नाम से 2 साल कबल यहाँ पे दस्तरखान शुरू किया। बिला नागा 500 से ज़्यादा लोगों के लिए खाना तैयार किया जाता है, बिल्कुल फ्री जो है ये दस्तरखान बचाया जाता है, फ्री खाना खिलाया जाता है। सैकड़ों लोग खाना खाते हैं और दुआएं देते हैं और ये खिदमत का अमल जारी है और मज़ीद इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। जी, ये थे मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा जो कि बता रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से ज़ायद जो मज़दूर हैं उनको खाना खिलाया जाता है बिल्कुल फ्री। और हमारा ये मकसद खिदमत खलक के लिए है और हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। जी, पीर महल में लागर और बीमार जानवरों को मुज़र सेहत गोश्त बेचने वाला माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। फूड सेफ्टी टीम की लाइव स्टॉक के हमरा नवाही इलाके में बड़ी कार्रवाई के दौरान 372 किलो मुज़र सेहत बदबूदार नाकिज़ और गैर मयारी गोश्त बरामद किया गया। वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त गैर मोहरशुदा, नाकिज़, नुकसानदेह और गैर मौजू करार दे दिया। बरामद किए गए बदबूदार गोश्त को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मीट यूनिट में बीमार लागर जानवरों का गोश्त, बदबूदार नाकिज़ गोश्त स्टोर किया गया था। गोश्त बनाने और तरसील में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करके मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीट यूनिट पर बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर पकवान सेंटर और होटलों पर नाकिज़ गोश्त फराहम किया जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक मनशियात से पाक पंजाब के तहत राजनपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात की बड़ी खेप पकड़ ली, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन मंशियात से पाक पंजाब के तहत कामयाब कार्रवाई के नतीजे में मंशियात की बड़ी खेप बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर जिला भर में मंशियात फिरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया। SHO गुलाम यासीन चंद गाजी ने थाना सदर फाजिलपुर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद आरिफ के कब्जा से 10 किलो 550 ग्राम चर्स बरामद कर ली। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। राजनपुर पुलिस वो बहादुर फोर्स है जो जुर्म के खिलाफ हमेशा नबर्द आजमा है। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। पतोगी की नाअहल इंतज़ामिया ने शहर भर को कचरा कुंडी और जौहड़ में तब्दील कर दिया है। आपको बताते चलें, फूलों के शहर पतोगी में जिधर देखें सड़कों, मोहल्लों, स्कूलों, पार्कों और सरकारी दफातर के बाहर कचरा कुंडी के ढेर नज़र आते हैं। सारे का सारा शहर सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। शहर की इंतज़ामिया साल साल से अपनी बारी लेने वाले सियासतदान सब ने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। इन हालात के पेश नज़र पतोगी के जवानों ने सिविल सोसाइटी के नाम से पतोगी बचाओ तहरीक का आगाज़ कर दिया है, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े शहर को संवारने में अपना किरदार अदा करने के लिए शामिल हो रहे हैं। जतोई में सगे भाई और भतीजों ने नाबीना शख्स की सारी जमा पूंजी लूट ली। भीख मांग कर पाई जमा की थी वापस दिलवाई जाए, माजूर शख्स की प्रेस क्लब में दुहाई। जतोई के नवाही इलाका शहबाजपुर के रहायशी मोहम्मद सलीम ने प्रेस क्लब में अपनी बेटी के हमरा प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं तेज़ाब गर्दी की वजह से दोनों आंखों से नाबीना हूँ। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कराची में भीख मांगकर मुश्किल से पैसे जमा किए थे, जो कि अपने भाई अब्दुल गफ़ार और भतीजों के पास अमानत के तौर पर रखे थे। जब मांगे तो वापस देने से मुकर गए, जिसका मुकदमा थाना जतोई में दर्ज। मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई और भतीजे मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के ताले तोड़कर सारी जमा पूंजी ले जाते हैं और जान से मारने की धमकियाँ भी देते हैं। अब भी मेरी बेटी से असले के जोर पर तलाई जेवर और जमा की गई नकद रकम ले उड़े। बाद अज़ा जतोई पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन बासर अफराद के दबाव पर ताहाल रिकवरी ना की जा सकी। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और आला हुकाम से अपील है, मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरी रकम मुझे वापस दिलवाई जाए ताकि मैं बकिया ज़िंदगी आसानी से गुजार सकूँ।
फरी टाउन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, 2 घंटों में डकैती के दौरान छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। एक डाकू गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब हो गए। मेट्रो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ सियाल से नूर शाह रोड पर मुसल्लह डाकुओं ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकद रकम छीन ली। DPO साहिवाल की सरबराही में SHO फरी टाउन और चौकी इंचार्ज ने इलाके में नाकाबंदी करके डाकुओं का पीछा करते हुए मोटरसाइकिल बरामद कर ली। थाना फरी टाउन पुलिस ने फरार होने वाले डाकुओं से एक डाकू को भी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। DPO साहिवाल के फौरी एक्शन से डाकू पकड़े जाने को साफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी ने खिराज तहसीन पेश किया। शहनामे से फ़िलहाल इतना ही।